مائک نمبر 2 پہ اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں بھائی لوگ. میرا نام درگیش سولنکی ہے اور میں نان مسلمان سے ہوں. میرا سرنیم سولنکی اور رکھی سماج جو بھنگی سماج کہتے ہیں وہی سماج سے ہوں اور میرے چھوٹے 2 بھائی مسلمان بن گئے ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں گھر میں. تو میں اب مسلمان بننا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے مسلم ہے اور کیا ہے. مسلمان بولے تو دہشت وادی مسلمان نہیں ہے. میرا سوال یہی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھنے سے میں مسلمان پکا کس طرح سے بن جاؤں. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے 2 چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا, الحمدللہ ہم کو کنگریچولیٹ کرتے. آپ کہتے کہ آپ مسلمان بننا چاہتے اور کس طریقے سے مسلمان بن سکتے. پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ پہ کسی نے زبردستی تو نہیں کی؟ نہیں سر, نہیں زبردستی کی, ماشاءاللہ. I like the Muslim. اور اگر آپ کہتے دہشت گرد مسلمان جیسی چیز ہے ہی نہیں ہے. ہاٹ کولڈ سمجھے, ہاٹ کولڈ ہے ہی نہیں, تو ہاٹ ہوتا ہے کولڈ ہوتا ہے. تو دہشت گرد مسلمان چیز ہی نہیں ہے. اگر وہ دہشت گرد تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, اگر مسلمان ہے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے. دونوں ساتھ میں ممکن ہی نہیں ہے. یس سر, یس, آئی لائک دس. تو آپ مجھے بولیں گے دہشت گرد مسلمان بناؤ تو میں بولوں گا میں تو نہیں بنا سکتا ہوں. میں پکا مسلمان بننا چاہتا ہوں. ہاں ماشاءاللہ, مسلمان بننا آپ کو میں کہہ سکتا ہوں. اور دہشت گردی کے بارے میں پرسوں میری تقریر ہے. کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے, وہ پرسوں تقریر کرتا ہوں. لیکن مسلمان بننا بہت آسان ہے. آپ کو کوئی باقی مذہب میں کوئی ڈبکی لینے کی ضرورت نہیں, نہ کوئی دھاگا باندھنے کی ضرورت ہے. صرف آپ اپنے زبان سے یہ قبول کریں گے کہ بھگوان ایک ہے, خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ مسلم بن سکتے. اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو میں عربی میں دہراؤں گا اور آپ بھی دہرائیے. آپ بھائی صاحب مانتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ ہاں سر. بس یہ 2 چیز ضروری ہے. آپ نے ٹوپی پہنا, اچھی بات ہے, ٹوپی پہننا فرض ہے, میں بھی پہنا ہوں ماشاءاللہ, پہنے اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو ٹوپی پہننا فرض نہیں. لیکن اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں مسلمان ہیں جیسا میں دکھانا چاہتا ہوں تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن وہ تو تاج ہے نا اسلام کا. میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. یس سر. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں السلام علیکم. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اس کے آخری پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ, ویلکم. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان میں کوئی بھی اونچی نیچی جاتی نہیں ہے. پیسے سے آپ اونچا نیچا نہیں ہو سکتے, دھن سے نہیں ہو سکتے, رنگ سے نہیں ہو سکتے. خالی اونچا نیچا وہ انسان ہے جو بھگوان کو زیادہ مانتا ہے, جو خدا کو زیادہ مانتا ہے. جتنا آپ خدا کے پیغام پہ عمل کریں گے اتنے اچھے مسلمان آپ ہیں. شکریہ سر, شکریہ. تکبیر. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسلام پہ جو امن کا دھرم ہے. یس سر. مبارکباد دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہنوں کی طرف سے پلیز. اب بھی ایک بہن کلمہ پڑھنا چاہتی ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے, میرے ساتھ میں. میرے ہاتھ میں دو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. MashaAllah, sister, that's very good.
That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah, sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just? आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? Yes sir. हाँ, पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं, और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था, और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज लाइव, एवरीथिंग इज ओपन, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुंचाते। आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता है तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए, मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये बहन जी को कभी देखा हूं, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है, और हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूं, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूं? हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है, और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपोगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा जो कलमा, और आप दोहराए और फिर मैं तर्जुमा करूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हैं? हाँ जी। अब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं, आप इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम सुनिए। ये पैगाम अमन का है। अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मजहब है, अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है, जिसको इंशाल्लाह मैं टच करूंगा आखिरी दिन पे। आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है, और इंशाल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को जबरदस्ती तलवार के जोर पे या बंदूक के बल पे किसी को कबूल नहीं करा सकते। ये इस्लाम में हराम है। कुरान में लिखा गया है ला इकराह फिद्दीन, कि कोई भी दीन में जबरदस्ती नहीं कर सकता। और मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बहन जी को और भाई साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको इंशाअल्लाह कबूल करे और इनके अमाल में इंशाअल्लाह तरक्की हो, और ये अपने खानदान में इस अमन को फैला सके। मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूजिक और वाचिंग मूवीज। इज इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूजिक? मैंने सवाल किए कि
मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूजिक सुनती हूँ, क्या जायज़ है कहने, क्या पिक्चर देखना जायज़ है कहने। कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में। उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ती है माशाल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चारिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में। आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पे भी आ सकते। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूजिक सुनना अलाउड है क्या नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। तो इस पस मंजर के हदीस के पस मंजर में म्यूजिक सुनना सही बात नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। और वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज है। टीवी देखना नाजायज नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज देखना, उरियानगी, ऑब्सेनिटी, ये देखना हराम है। लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते, तो वो गलत नहीं है। तो गलत चीज देखना हराम है, अच्छी चीज पिक्चर पे देखना जायज है। जो चीज शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज देखना जायज है, जो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम अरुण पवार है। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं कर, आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई। चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस और बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है।
तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहली, वक्त कम है, सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सॉरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो ना। तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो, और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8 फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8 फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। जज़ाकल्लाहु खैरन। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.